So in homework 11 12, after that I see question 10. Okay, okay, then I see fifth and 8. ओके, चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर. सो फर्स्ट लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम प्री रीडिंग एक्सरसाइज. ओके, प्री रीडिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. अब यहाँ पे आपको पूछा गया है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स क्या होगा. ओके, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा देन व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स. चलो बोलो. तो वो कल ही हमने मतलब प्रीवियस क्लास. So in previous class only we have seen its solution, isn't it? That if sin x is equal to sin theta, हमने तब थीटा और अल्फा के लिए देखा था. Okay, so tell me. Anyone raise your hand? Last time हमने देखा था वो अगर याद नहीं है तो that we can see over here. Okay, see if sin theta equal to sin alpha, then we can write theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n alpha. और वो क्यों लिख सकते हैं उसके ऊपर हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया था, isn't it? And where your alpha should belongs to close interval minus pi by 2 to plus interval pi by 2. Or okay, so same here also, if sin x is equal to sin theta, then your x can be equal to n pi plus minus 1 to the power n into theta, where your theta should belong to minus pi by 2 to pi by 2 close interval. Is it clear? Please give me some response. Is it clear? Okay, can you explain it again? Okay, चलो ठीक है, स्क्रीन गॉट ब्लर. ओके, सो यही चीज वापस एक्सप्लेन करनी है कि ये हमने क्यों लिखा था थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा. इसमें स्टिल कंफ्यूजन है क्या स्टूडेंट्स? ओके, चलो ठीक है, तो लेट अस सी. हाँ यस, आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन गूगल क्लासरूम एज वेल, और वो क्लास के एंड में ही कर देंगे. ओके, डोंट वरी. हाँ, तो एक बार मैं वापस पूरा समझा रहा हूँ आपको. तो क्लास के एंड में ही इसका मैं आपके सामने ही ये सारी चीजें कर देंगे, आपकी अटेंडेंस एज वेल एज गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट एज वेल एज इसकी पीडीएफ को सेव कर देंगे. ओके, ताकि छूट ना जाए, क्योंकि हर क्लास में ऐसा फिर पेंडिंग रह जा रहा है. सो हम साथ में खत्म कर देंगे. चलो सी ओवर हियर. अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आज हम वापस देखेंगे, बट जल्दी जल्दी देखेंगे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने आधा घंटा ऑलरेडी दिया ही है. ओके, हाउ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है, समझना. सो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. हमको एक एग्जांपल लेकर शुरू करेंगे, ठीक है, और वहां से हम इधर आने की कोशिश करेंगे. एक तरीके से तो हमने उसको समझने की कोशिश की. नाउ लेट अस ट्राई टुडे वन डिफरेंट अप्रोच. ओके, एक दूसरे अप्रोच से समझने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज अवर यूनिट सर्कल. ओके, नाउ इन दिस यूनिट सर्कल these are our coordinate axes. Okay, now see over here. Now I am traveling on this unit circle, right? What I am doing is I am traveling on this unit circle, and I have to see that on which places I am getting my value of sin theta is equal to half. Okay, sin theta equal to half कहाँ कहाँ पे आ रहा है वो मुझे देखना है. I am traveling on this unit circle. Okay, so definitely we all know that this is our x-axis, this is x dash, this is y, this is y dash, and this is origin. So on any point on unit circle पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ x, y, so its y coordinate will give me sin theta. That means this y axis will give me value of sin theta, right? This is value 1, right? Since it is unit circle, this is 0, 1. So at which point sin will become half
definitely here, right? Here I will get value of sine as half, and this point corresponds to these 2 points of circle. So whenever I'll travel on this unit circle, and whenever I'll touch these 2 points, or whenever I come to these 2 points, at that time I will get sine theta equal to half. First here, then again at here. Either I'm traveling clockwise, either I'm traveling anti-clockwise. At these 2 points, my value will be sine theta equal to half, isn't it? Here I don't know what will be x coordinate, right? So let us leave it blank, and we are not interested in that now. So sine theta will be half. Is it clear? So now can you tell me ये कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं? अभी सिर्फ मैं रेडियन में लिख रहा हूँ. तो इनिशियली sin theta equal to half आपके कौन से एंगल पे मिलेगा, right? If I am going in anti-clockwise direction first, so here we all know that it is 0, then pi by 6, 30 degree. 30 degree means pi by 6. 0, pi by 6. So at pi by 6, my sin theta will be equal to half. So here my angles will be theta equal to 0, pi by 6. Okay. Chalo, in the same way, again, if I'll go here, so this angle, now this angle, how I can find? Suppose this is also pi by 6, this is pi, and this is also pi by 6, right? So this angle will be pi minus pi by 6, isn't it? Please give me some response. So ये angle आपका पूरा क्या हो जाएगा? The whole angle is pi, right? And here you are going in this direction, so it is pi minus pi by 6. पूरा एंगल आपका पाई है, समझना, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल पाई है. पाई में से इतना एंगल आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो पाई बाई 6, तो इतना एंगल आपको मिल जाएगा. हाँ. Now Sneha is telling, how did you know that it is pi by 6, right? Because right angle triangle, अगर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका हाफ होना चाहिए, तो ये आपका हाफ तभी होगा जब इतना एंगल आपका पाई बाई 6 होगा, isn't it? In right angle triangle, sine is opposite side by, or in your terms perpendicular by hypotenuse. Since hypotenuse is 1, तो perpendicular आपका हाफ होना चाहिए, तो ये आपका पाई बाई 6 होना चाहिए. ओके. सो ये, तो अगर इसके बाद आपको दूसरा एंगल क्या मिलेगा, इफ आई कंटिन्यू टू राइट दिस, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पाई माइनस पाई बाई 6. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. सो इफ दिस इज पाई बाई 6, दिस इज पाई माइनस पाई बाई 6. ओके. इन अ सेम वे, चलो पूरा वापस घूम के आएंगे. सो आफ्टर 0 आई विल कम हियर टू पॉइंट 2 पाई. So now it will become 2 pi plus pi by 6. Okay. So it is 2 pi plus pi by 6. अब after that again 2 pi के बाद ये आपका हो जाएगा 3 pi. So it is 3 pi minus pi by 6. 3 pi minus pi by 6. In the same way, वापस एक और चक्कर लगाओ. So after 2 pi it will become 4 pi. So now it is 4 pi plus pi by 6. And here it will be pi pi. So it is 5 pi minus pi by 6. So what is moral of the story over here? Right. Here my theta can be equal to all the points on x-axis. Those are 0, 2 pi, 4 pi, plus pi by 6. Okay. And 0, 2 pi, 4 pi, all I have to write, then I can write them in terms of 2 and pi, isn't it? Where your n belongs to integer. यहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव वैल्यू आई. अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट? फिर वहां पे भी तो पाई बाई 6 तो आपको एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है, तो इट विल बी 2n pi plus pi by 6. Okay. Now, and for odd numbers, or for x dash, or for all the points on x dash axis, see over here, तो ये सारे x axis पे 0, 2 pi, 4 pi था. 0, 2 pi, 4 pi. इन सबको हमने क्या लिख दिया? 2n pi. Okay. Now let us see on x dash axis. So on x dash I am having pi, 3 pi, 5 pi. So these are pi, 3 pi, 5 pi. So definitely वो आपके क्या हो जाएंगे? 2n plus 1 और 2n minus 1. You can take anything. Okay. तो ये आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2n plus 1 pi minus pi by 6. Minus pi by 6. इज इट क्लियर? क्या पहले यहाँ तक क्लियर हुआ? हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है? क्या पहले यहाँ से यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ.
ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे। अच्छा ग्रेट। सो इफ थीटा इक्वल टू 2n पाई, यस सर डाउट बोलो करिश्मा, क्या डाउट है? टू एन प्लस वन, ओके, वो सारे ऑड नंबर्स है ना, राइट? ये हम क्लास 9th में पहली बार पढ़े थे कि जितने भी सारे ऑड नंबर्स हैं उन सारे ऑड नंबर्स को हम 2n+1 लिख सकते हैं, और जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सारे इवन नंबर्स को हम 2n लिख सकते हैं। सो ऑल इवन नंबर्स कैन बी रिटन एज 2n, ऑल ऑड नंबर्स कैन बी रिटन एज 2n+1। और यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स है ना, एक्स डेस पे पाई, 3 पाई, 5 पाई। अब इसमें n की सारी वैल्यूज रखो, n इक्वल टू 0 रखो तो ये 1 आएगा, n इक्वल टू 1 रखो तो 3 आएगा। ओके, एनी अदर डाउट्स? चलो, अब अगर इन दोनों को मुझे कंबाइन करके लिखना हो, समझना, इन दोनों को मुझे कंबाइन करके लिखना हो कि जिसमें इवन और ऑड सारी टर्म्स दोनों आ जाएं, सो व्हाट आई कैन राइट इज, समझना यहाँ पे थीटा इक्वल टू ये π/6, जो RHS पे आपका π/6 है वो तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो तो दोनों में कॉमन है। बट यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ π/6 के आगे प्लस है, यहाँ π/6 के आगे माइनस है। प्लस कब है? इवन मल्टीपल के केस में वो प्लस है, और ऑड मल्टीपल के केस में वो माइनस है। तो ऐसा कुछ आपको पता है जो इवन के लिए प्लस हो जाए और ऑड के लिए माइनस हो जाए? ओके, इवन के लिए प्लस हो जाए और ऑड के लिए माइनस हो जाए, ऐसा कुछ है? यस। अगर मैं -1n लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 जब आपका n इवन होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 जब आपका n ऑड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n 1 जब आपका n इवन होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 जब आपका n ऑड होगा। आई होप ये चीज तो आपको क्लियर है, राइट? तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, प्लस और माइनस को कंबाइन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, π/6 के मल्टीपल में -1n रख दूंगा। तो इससे फायदा क्या होगा, जब भी n की पावर इवन होगी तो ये +1 हो जाएगा, जब भी n की पावर ऑड होगी तो ये -1 हो जाएगा। ओके, तो अब मुझे आगे का भी n पाई को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको इवन और ऑड सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। मैं उसको n पाई प्लस -1n π/6 लिख सकता हूँ। क्यों? समझना, इसको मैंने अभी लिखा है दोनों को कंबाइन करके n पाई प्लस -1n π/6। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी आपका n इवन होगा, राइट, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन थे अलग अलग, उन दोनों एक्सप्रेशन को मैंने एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। जब आपका n इवन होगा तो ये एक्सप्रेशन आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आपका n ऑड होगा तो ये एक्सप्रेशन आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। चलो, अगर उसमें स्टिल कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसकी मदद से देखेंगे। ये दोनों एक्सप्रेशन हमने कहाँ से देखे थे? सी, ये इवन वाला एक्सप्रेशन हमने कहाँ से लिखा था? इवन वाला एक्सप्रेशन हमने यहाँ से लिखा था। ऑड वाला एक्सप्रेशन हमने कहाँ से लिखा था? ऑड वाला एक्सप्रेशन हमने यहाँ से लिखा था। ओके, ऑड वाला एक्सप्रेशन मैंने यहाँ से लिखा था। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू इवन और ऑड रख रहा हूँ तो ये दोनों एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो n की हर एक वैल्यू लेके देखते हैं इवन ऑड, उसके लिए ऊपर वाले सारे के सारे एक्सप्रेशन आने चाहिए। सो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो इट इज 0 इंटू पाई। ओके, हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 0 प्लस π/6 आएगा, मिस्टेक, इट इज 0 प्लस π/6। तो जब मैं n की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो इट इज 0 पाई प्लस -1 दैट इज 1 π/6। तो n इक्वल टू 0 पे ये मेरा आ गया। ओके, चलो n इक्वल टू 1 रख रहा हूँ तो इट विल बी पाई प्लस -1 माइनस, सो पाई माइनस π/6, n इक्वल टू 1 पे ये आ गया। n इक्वल टू 2 रख रहा हूँ तो 2 पाई प्लस -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस π/6। तो n इक्वल टू 2 पे 2 पाई प्लस π/6 हो गया। n इक्वल टू 3 रख रहा हूँ तो वो आपका हो जाएगा 3 पाई माइनस π/6। n इक्वल टू 4 रख रहा हूँ तो 4 पाई और -1 प्लस हो जाएगा, प्लस π/6। पाई रख रहा हूँ तो पाई पाई -1 माइनस हो जाएगा, माइनस π/6। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? क्या अब इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1n π/6। पिक्चर अभी भी बाकी है, अभी हमने अल्फा इंट्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है, अभी अल्फा बाकी है। अभी मैं सिर्फ π/6 के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ठीक है।
तो पाई बाई सिक्स, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स है, राइट, अगर मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा इक्वल टू हाफ या साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, चल अब मैं यहाँ पे अल्फा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, समझना। चलो, अब हम ना सारी साइन की वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कि सारी साइन की वैल्यूज हमें कहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज मिलती हैं। वी ऑल नो दैट कि हमारा जो भी साइन फंक्शन है उसका डोमेन है आर, और उसकी रेंज है -1 to 1। ओके, उसका आउटपुट है -1 to 1, इनपुट आप। तो उसकी हर एक वैल्यू -1 to 1, उसके कौन कौन से इनपुट के लिए सारी वैल्यू कवर हो जाती है वो मैं फाइंड कर रहा हूँ, समझना। तो साइन की वैल्यू 1 मुझे कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे। साइन की वैल्यू मुझे -1 कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे। तो अगर मैं शुरू कर रहा हूँ साइन का ग्राफ प्लॉट करना, समझना। तो अगर मैं यहाँ से ट्रैवलिंग शुरू कर रहा हूँ, दिस इज माई एंगल 0, यहाँ पे साइन की वैल्यू 0। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ते जा रहा हूँ, सो माई एंगल इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। ओके, मेरा एंगल इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मेरा एंगल इंक्रीज हो रहा है, हर एक एंगल के लिए मेरी साइन की वैल्यू, ये वाई एक्सिस पे मेरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 to 1। So in first quadrant, when I am traveling from theta equal to 0 to theta equal to pi by 2, so I am covering all this value of y-axis, right? So if I am traveling from 0 to pi by 2, including both, I am covering half of the range, that is 0 to 1. Sine की half range मैंने cover कर ली है। Now when I am traveling from theta equal to pi by 2 to theta equal to pi on this point, when I am traveling from here to here, right? So my theta, for all this theta, my value of sine is again going to decrease from 1 to 0. So it will all again take value from 1 to 0, right? So when my theta is from pi by 2 to pi, again my sine's value are from 0 to 1. Okay, here all values are increasing and here all values are decreasing, but here now we are not considering increasing or decreasing. I am just considering कि -1 से 1 की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ पे पूरी वैल्यू कवर कर रहा है। Okay, चलो, now here if I am traveling to theta equal to pi to theta equal to 3 pi by 2, so for all these angles my value of sine is going to decrease from 0 to -1. So it will cover all values of 0 to -1. So for theta equal to pi to 3 pi by 2, it is covering all values from -1 to 0. Is it clear? In the same way, when I am traveling from theta equal to 3 pi by 2 to 0, or theta equal to 3 pi by 2 to 2 pi once again, if I'm traveling from theta equal to 3 pi by 2 to 2 pi once again, for all this value of theta, my value of sine is again -1 to 0. So for 3 pi by 2 to 2 pi, my values are again -1 to 0. Is it clear? पहले क्या ये चीज क्लियर हो गई कि थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ऐसे मुझे साइन की वैल्यू रिपीट हो रही है। सो फॉर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट मुझे 0 से 1 वैल्यू मिल रही है, फॉर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मुझे -1 से 0 की वैल्यू मिल रही है। ओके, अब मुझे कोई ऐसी रेंज या ऐसा इंटरवल पसंद करना है जिसमें ये सारी वैल्यू मुझे सिर्फ एक बार मिले, ये सारी वैल्यू मुझे सिर्फ -1 to 1 ओनली वन टाइम मिले। ओके, तो ऐसी रेंज में कौन सी पसंद कर सकता हूँ, समझो। आई कैन चूज आइदर दिस पोर्शन, आई कैन चूज आइदर दिस हाफ, और आई कैन चूज आइदर दिस हाफ। I can choose either left side portion or I can choose either right side portion. So in first and fourth quadrant also, first और fourth में भी पूरा के पूरा साइन की वैल्यू कवर हो रही है, और सेकंड एंड थर्ड में भी -1 से 1 कवर हो रही है। कोई भी एक में कवर करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, वही सारे एंगल्स रिपीट होते जाएंगे। ओके, इज इट क्लियर? सो यू कैन टेक एनी, यू कैन कंसिडर आइदर फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड एंड थर्ड, बट पूरे वर्ल्ड में सभी जगह इन और ऑल ओवर द वर्ल्ड
इक्वालिटी रहे, इसीलिए कोई भी एक पोर्शन को पहले सिलेक्ट किया गया और वो पोर्शन को सभी जगह के लिए फाइनल किया गया है. ओके, एंड दैट पोर्शन इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को फाइनल कर दिया गया. एंड फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आप 0 से π/2 ले रहे हैं, 3π/2 से 2π ले रहे हैं, तो कंटिन्यूटी नहीं रह रही है. सो कंटिन्यूटी के लिए क्या क्या, ये 0 से π/2 आप क्लॉकवाइज जा रहे थे, अब 0 से π/2 अगर नीचे ऑन 3π/2 अगर आप मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, अगर आप ये क्लॉकवाइज जाओगे तो ये एंगल हो जाएगा आपका -π/2 विच इज सेम एज 3π/2 ओनली. मतलब वहां पे सेम वैल्यू विच इज सेम और विच गिव्स यू सेम पॉइंट ऑन y डैश एक्सिस. ओके, सो इसीलिए फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को कौन से इंटरवल में चूज किया गया, -π/2 से π/2. तो अब ये -π/2 से π/2 और जितना हमने ऊपर से देखा, अगर उन दोनों को हम कंबाइन करें, ओके, सो व्हाट वी लर्न सो फार इज फॉर थीटा इक्वल टू π/6, हर थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर n π/6 पे मुझे सेम वैल्यू मिलेगी जितना भी मैं घूम के आऊं. ओके, तो इन द सेम वे फॉर theta belongs to any -π/2 to π/2, or I can say if there is any angle alpha which belongs to -π/2 to π/2, for this angle if I am writing sin theta equal to sin alpha, तो थीटा और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होगा, थीटा शुड बी nπ प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, इजंट इट? बिकॉज अगर अल्फा -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, अल्फा आपका एंगल यहाँ से यहाँ कोई भी एंगल है, अब वहां पे जो साइन की वैल्यू मिल रही है, वहां पे जो आपको साइन की वैल्यू मिल रही है, वो सेम वैल्यू आपको कोई भी एंगल पे मिलेगी, राइट? वो आपको कोई भी थीटा पे मिलेगी. अब वो कौन से थीटा पे मिलेगी? आइदर एवरी टाइम अगर ये आपका एंगल अल्फा है तो एवरी टाइम आप 2n π प्लस अल्फा कर रहे हो तब, या एवरी टाइम आप 2n प्लस 1π माइनस अल्फा कर रहे हो तब. अगर ये आपका अल्फा है तो जब भी आप 2n π माइनस अल्फा कर रहे हो तो इधर अल्फा ऑलरेडी आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो या 2n प्लस 1π प्लस अल्फा कर रहे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या ये चीज क्लियर हुई? तो इसीलिए हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर n अल्फा. स्टिल कंफ्यूजन है? थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर n अल्फा एंड योर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2. तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है कि आपका -1 to 1 वाली चीजें भी कवर हो गई अल्फा की, और मतलब क्यों हमने फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लिया -π/2 से π/2, और ये भी कवर हो गया. ओके, please give me some response. Is it clear? So Karishma, you are telling that screen is blur, it is not readable. Can you not you are not able to read it, or should I explain the last portion? Last portion clear हुआ? मुझे शायद ऐसा लग रहा है लास्ट पोर्शन ऊपर से गया. लास्ट पोर्शन क्लियर हुआ, -1 to 1, और यहाँ पे π/6 तक आपको सब पता चल गया था. π/6 से अल्फा में जो मैंने आपको पूरा समझाया. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? सो करिश्मा, आई थिंक बाकी सबको अच्छे से दिख रहा है. अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो यू कैन यूज रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस. ओके, क्या आपको दिख रहा है और लास्ट पोर्शन में डाउट है? π/6 तक आपका क्लियर है? ओके, ठीक है, चलो लास्ट पोर्शन रिपीट करते हैं. लास्ट पोर्शन और कोई दूसरे मेथड से समझाऊं? लास्ट पोर्शन में पहले यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? 0 से π/2 में 0 to 1, π/2 से π में 0 to 1, π to 3π/2, -1 to 0 एंड 3π/2 to 2π -1 to 0. क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके बाद वाला मैं समझा रहा हूँ वापस, पहले यहाँ तक क्लियर होना चाहिए. ओके, चलो अब यहाँ से मैं इसके बाद वाला समझा रहा हूँ. चलो अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो उसके बाद ये चीज क्लियर हो, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है येलो और ग्रीन हाईलाइटर से, क्या वो चीज क्लियर है कि साइन की सारी वैल्यू, मुझे ये देखना था कि साइन की वैल्यू, आपको ये पता है कि हर एक इनपुट के लिए आप बहुत सारे इनपुट डाल सकते हो. साइन इज मैनी टू वन फंक्शन, तो आपको मैनी इनपुट आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे मैनी इनपुट मिलेंगे जिसके लिए आपका आउटपुट सेम रहेगा, और वो आउटपुट आपका -1 to 1 के बीच में है. तो पहले मुझे ये कन्वर्ट करना है कि मुझे एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए, एक पर्टिकुलर एक रेंज चाहिए डोमेन की, कि जिसके लिए -1 to 1 की सारी वैल्यू कवर हो जाए. ठीक है, फर्स्ट टाइम.
तो -1 to 1 की सारी वैल्यू कब कवर हो रही है, क्या वो -π/2 से π/2, या मतलब फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में सारी कवर हो रही है। और लेट मी प्लॉट ग्राफ ऑफ साइन एज वेल, ताकि हम वहां से भी थोड़ा कंपैरिजन कर पाए।